صلوات کریں۔ اپنے آقا سید السرکار کے ظہور کے لیے بلند تر سرکار خصوصاً ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز میں کہانی مجلس کے جان مال رزق اولاد میں اور گھر میں خیر و برکت کے لیے بلند تر سلوات نعرہ تکبیر ماشاء اللہ کافی حضرات تشریف فرمائے نعرے کا جواب بلند آواز سے دیا کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آواز بلند صلوات کریں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ وتنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموعات دائم المدعوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود الرابطۃ بین العبد والمعبود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات بلند آواز سے عزیزان گرامی بزرگان دین آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن اور حقیقت ولایت قرآن اور حقیقت ولایت کے عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ سے ایک مشہور زمانہ آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد خداوندی ہے اور یہ جو آیت میں نے عنوان قرار دیا ہے جس آیت کو یہ آیت نہ مکی ہے اور نہ یہ مدنی آیت ہے اس آیت کو کہتے ہیں آیہ غدیر یہ غدیر میں آیت نازل ہوئی ارشاد خداوندی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ اے رسول تبلیغ کرو اس کی تبلیغ کرو ما انزل الیک من ربک اس کی تبلیغ کر جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا اور اگر تو نے اس کی تبلیغ نہ کی فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس تو تم نے کوئی رسالت کا کام نہیں کیا یعنی دیکھیں انداز کلام دیکھیں قرآن میں کہ اللہ رسول کو کس طرح خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ اے رسول تبلیغ کر یہاں کوئی القاب استعمال نہیں کیا الفاظوں کی شدت کو آپ دیکھیں کہ یا ایھا الرسول بلغ اے رسول تبلیغ کر پتہ چلا لفظ تبلیغ فقط اور فقط ولایت علی کے ساتھ ہے ولایت امیر المومنین کے ساتھ اللہ نے قرآن
कुरान में लफ्ज़ तबलीग इस्तेमाल किया है। और देखें पूरे कुरान को पढ़कर कि ये अल्लाह का महबूब है, वजह तख्लीक कायनात है। अल्लाह ने रसूल को प्यारे प्यारे अल्काबात से याद किया। कभी यासीन कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी ताहा कहा, कभी नज़ीर कहा, कभी बशीर कहा, कभी सिराज मुनीर कहा। लेकिन इस आयत में न नज़ीर कहा, न बशीर कहा, न मुजम्मिल कहा, न मुदस्सिर कहा। इस आयत में कहा कि या अय्युहर रसूल बल्लिग, ओहदे से पुकारा, ओहदे से पुकारा कि तबलीग कर उसकी जो तेरे रब ने तेरे ऊपर नाजिल की है। तो अब मैं तमाम शिया सुन्नी भाइयों से पूछता हूँ कि ये रसूल ने जो गदीर में तबलीग की थी, क्या रसूल ने कुरान पहुँचाया था? क्या रसूल ने वहाँ रोजे पहुँचाए थे, हज पहुँचाया था, ज़कातें पहुँचाई थी? कुरान तो पहले नाजिल हो चुका था, मुकम्मल कुरान पहले नाजिल हो चुका। नमाज का हुक्म आ चुका, रोजे का हुक्म आ चुका, हज का हुक्म आ चुका, ज़कातों के अरकान बता चुके। ये कौन सी तबलीग थी जो अल्लाह ने रसूल को हुक्म दिया है? तो ये रसूल ने कुरान नहीं पहुंचाया था, नमाजें नहीं पहुंचाई थी। रसूल ने फरमाया था मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं रसूल मौला हूँ उसका ये अली मौला है। बस इधर ऐलान का करना था। यह आयत नाज़िल हुई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे हबीब, आज के दिन तुम पर नेमतें तमाम हो गई और तेरा दीन कामिल हो गया। पता चला पहले दीन कामिल न था। बड़ा जुमला मैंने अर्ज किया है, पहले दीन कामिल न था। नमाजें आई, दीन कामिल नहीं हुआ। रोजे आए, दीन कामिल नहीं हुआ। हज के अरकान आए, दीन कामिल नहीं हुआ। दीन कामिल कब हुआ? जब अलीयन वलीउल्लाह आया, जब अलीयन वलीउल्लाह आया। पता चला कि जब बगैर अलीयन वलीउल्लाह के रसूल की रिसालत नहीं बैठी तो तेरी नमाज कैसे बचेगी? समझ में आ रही मेरी गुफ्तगू? जब रसूल की रिसालत ही नहीं बैठी, अगर तुमने ये पैगाम न पहुंचाया तो अब मानना पड़ेगा कि ये ऐसा अहम पैगाम था, ये ऐसी बात थी कि अगर रसूल न पहुंचाए तो उसकी रिसालत खत्म। अब ये तो तय हो गया ना कि अगर इस पैगाम के न पहुंचाने से रसूल रसूल नहीं रहता। जो है मेरी सलवात तकरीर आज की मुख्तसर होगी, लेकिन कुरान की आयतों पर मुश्तमिल आयतों की तकरीर होगी और इतनी जामे होगी कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है लेकिन हकीकत अली तल नहीं सकता। और मैं कुरान से आज की जो मैं आयतें पढ़ूंगा, इसको जाकर कुरान में जाकर वेरीफाई भी करना। और फिर अगर कोई अली की विलायत का मुनकर हो तो फिर उसको अल्लाह ही समझाए, मैं तो नहीं समझा सकता। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा? वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। ये आयत टुकड़ों में नाज़िल हुई है, टुकड़ों में। पहले आया या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल नहीं रुके। फिर आया मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, तबलीग कर उसकी जो तेरे रब ने नाज़िल किया, लेकिन रसूल नहीं रुके। फिर आया व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। जब ये टुकड़ा आया, अल्लाह ने गारंटी दी कि मैं अल्लाह तुम्हें शरीरों के शर से बचाऊंगा। तू अली की विलायत बयान कर, मैं अल्लाह तुम्हें शरीरों के शर से बचाऊंगा, लेकिन तू अली की विलायत का ऐलान कर। जब अल्लाह ने गारंटी दे दी तो अब रसूल ने जो पीछे रह गए थे उनको आगे बुलाया और जो आगे चले गए थे उनको पीछे बुलाया और वहां अली की विलायत का अलम नस्ब किया, झंडा नस्ब किया और ये कहकर किया कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। और अल्लाह ने जुमला क्या कहा? मैं अल्लाह तुम्हें शरीरों के शर से बचाऊंगा। तमाम मुसलमानों के सर पर कुरान रखकर पूछो कि ये गदीर में शरीर कहां से आ गया? बड़ा जुमला मैंने अर्ज किया है, ये गदीर में शरीर कहां से
भी थे जिन्होंने अली की तलवार की खौफ से कलमा पढ़ा था। अल्लाह ने किया है दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, और अल्लाह ने आखिर में आयत में कहा इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, मैं अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता। काफिरों का कदीर में क्या काम? समझ में नहीं आई मेरी बात? काफिर और कदीर में इस आयत में अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता। तो अब है मिजाज सुनने पर चार आयतें पढ़ूं, कुरान से पूछो कि काफिर किसे कहते हैं। ये अल्फाज है किबला कुरान हकीम के। आपको दावत फिक्र दे रहा कि जाओ जाकर रात को कुरान को पढ़ना कि काफिर कहते किसे है। तो सबसे पहले अल्लाह ने सूरत अल-हदीद में इरशाद फरमाया आजबल कुफ्फारा नबातहु, अल्लाह ने कहा ये किसान जो है लहलहाती खेती को देखकर खुश होते हैं। जब इनकी खेती अच्छी हो तो ये खुश होते हैं। अल्लाह ने किसान को काफिर क्यों कहा? तवज्जो है मेरी, घबराहट नहीं। अल्लाह ने कहा आजबल कुफ्फारा नबातहु, क्योंकि किसान एक अमल करता है, बीज को जमीन में छुपाता है और ऊपर से लकड़ी फेंकता है ताकि बीज जमीन में छुप जाए। यहाँ कुफ्र के माने है छुपाना। अल्लाह ने कहा जितना तू हक को छुपाएगा उतना कुफ्र की माने है छुपाना। और सूरत इब्राहिम में इरशाद हुआ कि कयामत के दिन मुसलमान और शैतान लड़ेंगे एक दूसरे से। मुसलमान और शैतान, मुसलमान शैतान पर लानत करेंगे, शैतान पलट कर कहेगा फला तलूमुनी, तुम मेरे ऊपर लानत न करो, वलूमू अनफुसकुम, आज तुम अपने नफ्सों पर लानत करो। क्यों? इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, मैं तो इसका पहले ही मुखालिफ था, ये जो तुम हक और बातिल को मिलाकर मानते थे। मैं तो शिर्क का पहले ही मुखालिफ था जो तुमने अली के हमसर बना रखे। मैं तो शिर्क का पहले ही मुखालिफ था। यहाँ कुफ्र की माने है मुखालफत करना। शैतान कहेगा कि मैं तो इसका पहले ही मुखालिफ था, इस शिर्क का पहले ही मुखालिफ था। यहाँ कुफ्र की माने मुखालफत करना। सूरत अल-हदीद में कुफ्र की माने छुपाना, सूरत इब्राहिम में कुफ्र माने मुखालफत करना, और सूरत आले इमरान में इरशाद हुआ इन्ना अफला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल फीहि व हुदल नास फीहि बय्यिनातुम मिनल हुदा। तवज्जो है मेरे, सलवात पढ़ ले मौला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले फीहि आयातुन बय्यिनातुन मकाम इब्राहीम व मन दखलहु कान आमिना व लिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत व मन इस्तता अलैहि सबीला व मन कफरा फइन्नल्लाह गनिय्युन लिल आलमीन। अल्लाह ने कहा मैंने हज मुसलमानों पर फर्ज किया। अगर कोई इस्तिताअत रखने के बावजूद पैसा भी है फिर हज न करे तो मैं अल्लाह पे नियाज हूँ। यहाँ कुफ्र की माने है जानबूझ कर छोड़ना। नतीजा निकल रहा, सलमान पड़े मौला की ताकि उनके भी जेहन में आ जाए कि मैं कौन सा मौजूद पढ़ा। कुफ्र माने छुपाना, सूरह अल-हदीद में कुफ्र माने छुपाना, सूरह इब्राहिम में कुफ्र के माने मुखालफत करना, और सूरह आल इमरान में कुफ्र के माने जानबूझ कर छोड़ना। अल्लाह ने कुरान में कहा अगर किसी के पास इस्तिताअत भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, और फिर अल्लाह का हज न करे, जानबूझ कर छोड़ दे, तो यहाँ कुफ्र की माने है जानबूझ कर छोड़ना। और चौथे माने सूरह अल-मुम्तहना 28वें पारे की सूरा है, अजीब जुमले हैं। कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना माअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआउ
शैइन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका वअदबना इलैकल मसीह। अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए इब्राहिम और उसके मानने वालों मैंने की है। इब्राहिम मैंने की है, इब्राहिम में, इब्राहिम के तुम्बे में नेकी नहीं है, बकरे में कोई नेकी नहीं है, बकरे में कोई नेकी। ये तो आइंदा तकरीरों में बताऊंगा कि कुर्बानी किसकी कबूल है या नहीं है। ये तो कुरान से फैसला होगा ना कि कुर्बानी किसकी कबूल है। अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए इब्राहिम और उसके मानने वालों ने की है। कौन सी ने की है? इस काबूल कौम है इन्ना बुराउ मिनकुम मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। जब इब्राहिम और उसके मानने वालों ने अपनी कौम को खिताब करके कहा कि हम तुम पर भी तबर्रा करते हैं और अल्लाह के बनाए हुए हाजियों को छोड़कर जो तुमने खुद बनाए हैं उन पर भी तबर्रा करते हैं। कुरान पढ़ा अभी तक मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी कि कोई कहे कि रावी कमजोर नहीं, रावी कमजोर नहीं, मुसलमान मजबूर है, मजबूर है। इब्राहिम के लिए अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान लाने वालों तुम्हारे लिए हसना है, हसना इब्राहिम में और उसके मानने वालों में नेकी है। कौन सी नेकी? जब इब्राहिम और उसकी कौम ने अपने मानने वालों को कहा, मुखालिफ पार्टी को कहा कि हम तुम पर भी तबर्रा करते हैं और अल्लाह के बनाए को छोड़कर तुमने खुद बनाए हैं उन पर भी तबर्रा करते हैं। ये तबर्रा हम शियों ने नहीं बनाया, तबर्रा कुरान में है, कुरान में तबर्रा है। और अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम ने क्या कहा कि हम तुम पर भी तबर्रा करते हैं और अल्लाह के बनाए हुए को छोड़कर जो तुमने अपने बनाए हैं उन पर भी तबर्रा करते हैं। आज मुसलमान कहते हैं हम तो सुन्नत इब्राहिमी पर है। अब सुन्नत इब्राहिमी क्या हुई? सुन्नत इब्राहिमी ये हुई कि जो बनाए पहले उस पर सुन्नत इब्राहिमी ये है कि जो बनाए उस पर भी लानत और जिसको बनाए उस पर भी लानत, जो बनाए उस पर भी लानत और जिसको बनाए उस पर भी लानत। आप ये फैसला करते हैं अगर हमने अल्लाह के बनाए हुए को छोड़कर कोई अपना बनाया है तो फिर लानत हमारे ऊपर करो, और अगर तुमने बनाया है तो फिर तुम पर भी लानत करो। जिंदगी भर यूनाइटेड फ्रंट में शामिल ही नहीं हो, किसी तरफ में नहीं था। वही कहूंगा जो अल्लाह, रसूल और अली ने कहा। इससे हटकर गुफ्तगू न होगी कि मैं किसी के कहने पर अली बयान करूं, ना मैं किसी के कहने पर अली बयान करूंगा और ना ही आपको मुल्ला के कहने पर अली को मानना चाहिए। अगर मुल्ला के कहने पर अली को मानोगे, यही मुल्ला तुम्हें कहेगा कि अली को छोड़ दो। नहीं, रसूल और अल्लाह के कहने पर मानो, रसूल और अल्लाह के कहने पर अली को मानो। अली हमारा इमाम अव्वल है। अली के लिए क्या कहा अल्लाह ने कुरान में कि देखो मैं अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता, मैं अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता। सुन्नत इब्राहिमी समझ में आ गई कि जो बनाए उस पर भी लाना, जिसको बनाए उस पर भी लाना। पहले बनाने वाले पर लाना, फिर बनने वाले पर लाना। हमने तो कोई नहीं अपना बनाया, हमारे 12 इमाम हैं। किसी में जुर्रत हो तो कहे कि शियों का फलां इमाम काफिर है, तो अली की इज्जत की कसम खा कर कहता हूं मजहब छोड़ दूं, इसलिए कि हमारा इमाम है कुरान, 14 कुरान है।
اور دل میں علی علی کرنا اور جمیل حیدر کا جملہ سننا اگر سال بھر یاد نہ رہے تو پھر جمیل حیدر خطیب نہیں. کفر مانے چھپانا, کفر مانے مخالفت کرنا, کفر مانے جان بوجھ کر چھوڑنا, کفر مانے بدعت اپنا ہاتھی بنانا, اللہ کے ہاتھی کو چھوڑ کر اپنا بنا لینا. جو 40 برس تک پہلے کنکر کو شنکر سمجھتا تھا چھپائے وہ بھی کافر ہے. جو علی کی ولایت کو چھپائے وہ بھی کافر ہے. آج کے بعد جو علی کی ولایت کی مخالفت کرے وہ بھی کافر ہے. آج کے بعد جو علی ولی اللہ پڑھتا پڑھتا چھوڑ دے, چھت پر علم بھی ہو اور نیچے کہے کہ علی نہیں ہے. چھپائے وہ بھی کافر ہے. جو علی کی ولایت کی مخالفت کرے وہ بھی کافر ہے. اور جو جان بوجھ کر علی کی ولایت کو چھوڑ دے وہ بھی کافر ہے. اور جو نعرہ حیدری سے یا جعلی مدد کو بدعت سمجھو وہ بھی کافر ہے. جو علی کی ولایت کو چھپائے وہ بھی کافر, جو مخالفت کرے وہ بھی کافر, جو جان بوجھ کر پڑھتا پڑھتا چھوڑ دے. چھت پر علم بھی ہے, یہ علی کا انکار کیوں؟ علم بھی اتارتا, سمجھ میں نہیں آ رہی, علم بھی اتار دیتا, پھنس گیا ہے. امام اور نبی اور خدا ستار العیوب ہے, پردے رکھے ہوئے ہیں, دلوں کے رازوں سے واقف ہیں. اور جو علی کی ولایت کو جان بوجھ کر چھوڑ یا نعرہ حیدری یا جعلی مدد کو بدعت سمجھے وہ بھی کافر ہے. اب آپ کو گھبراتے ہیں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. یہ پاکستان ہے, انڈیا نہیں ہے. یہاں سارے مسلمان رہتے ہیں. آپ کو جو بھی ملے, کوئی ملا ملے, کوئی نوجوان ملے, کوئی بوڑھا ملے, آپ اس کو جعلی مدد کر کے دیکھیں. اگر وہ جواب میں علی مولا مدد کہتا ہے تو آپ سمجھنا کہ یہ مسلمان ہے. اور اگر غصہ کرے کہ نہیں یہ تو بدعت ہے تو اس سے لڑنا نہیں, جھگڑا مور نہ لینا, اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنا بھائی مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں پاکستان میں بھی یہودی رہتے ہیں. میں نے تو مسلمان سمجھ کر یہ علی مدد کہا تھا. اب آخری آیت سنو. بھائی آصف مولا بانی مجلس کے جان مال رزق اولاد میں برکت عطا فرمائے. یقیناً اس کا خلوص ہے, یہ اتنی منظوری کی مجلس ہے, یہ بانی مجلس کا خلوص ہے. میں جمیل حیدر فقیر آدمی ہوں, اس کو دعا کرتا ہوں کہ مولا اس کے جان مال رزق اولاد میں برکت عطا فرمائے. مولا ان کے بچوں کو پروان چڑھائے, تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرمائے. میں نے عرض کیا آخری آیت پڑھ رہا ہوں. بڑے بڑے عالم گزر چکے ہیں جن کی جوتی کا برابر بھی جمیل حیدر ہے, لیکن میری محنت کو بھی دیکھو کہ آج جو میں آیت پڑھ رہا, اس آیت سے کسی نے پردہ نہیں اٹھایا. میں نے ہر عالم کے ریکارڈ بھی سنے اور میں نے تقریریں بھی ان کی سنی, کسی نے نہیں اس رات سے پردہ اٹھایا. اگر آپ کسی کی تقریر میں یہ جملہ سنیں یا کسی کی کتاب میں پڑھیں تو کہنا جمیل حیدر نے نقل کی ہے یا کاپی کی ہے, یہ میری محنت ہے جو میں ابھی پڑھ
सलवात पढ़े मौला। सूरह बकरा गाय वाली सूरा, उसमें अल्लाह ने कहा फला तक्तुमु शहादा, मेरी एक शहादत को न छुपाओ। माशाअल्लाह, कहाँ दुनिया भागेगी अली, अली छोड़ेगा। अली वलीउल्लाह से इतना हसद है तो अली कब्र में आएगा, फिर अली से भाग जाना। तुम्हें मोहलत दी है हमने, शैतान को हमेशा अल्लाह मोहलत देता। आना तो हमारे पास ही है ना, कहाँ जाएगा तू? कर ले जितनी बगावत करनी है अली से, लेकिन आएगा तू अली के सामने। कब्र में अली आता है, अली कब्र में अली आता है। अगर जमील अगर कुरान से अली का कब्र में आना साबित न करे तो यहाँ साहिवाल में जमील अगर का कत्ल माफ है। मजालत में बताऊंगा ना कि अली कब्र में आता है। अगर कुरान न कहता कि अली कब्र में आता, जमील अगर कभी भी ये जुमला न कहे, कुरान को पढ़ कर देखें सूरह वाक़िया, उसमें बताया अल्लाह ने पूरा सूरह वाक़िया भरा पड़ा अली का कब्र में आना साबित है। तो मैंने क्या किया, अल्लाह ने क्या कहा, सलवात पढ़े बोला। मौला हमारे भाई की ये नजराना कबूल फरमाए, सलवात पढ़े मौला। सलवात पढ़े मौला। आया तो मौला हुसैन की तरफ से, राणा साहब को वसीला बने, सलवात पढ़े मौला। मेरी एक गवाही को न छुपाओ। तो नहीं, झगड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पर नहीं, झगड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नहीं, मेरी एक शहादत को न छुपाओ। अब अल्लाह ने जियोग्राफिकल कंडीशन ही खत्म कर, अल्लाह ने कहा फमैया तुम, जिसने भी उस एक शहादत को छुपाया, जिसने भी छुपाया, जियोग्राफिकल कंडीशन है, काला हो, गोरा हो, सुंदर हो, ईरानी हो, अफगानी हो, रूसी हो, दूसरी हो, फर्सी हो, आशी हो, शहादत को छुपाया, फइन्नहु आसिमुन कल्बुहु, तो वो अपने ज़मीर का मुजरिम है। वकील साहब की तशरीफ फरमा है, मौला इनको बड़ी जिंदगी दे, समझते हैं। एक होता है लफ्ज मुल्जिम, एक लफ्ज होता है मुजरिम। मुल्जिम उसे कहते हैं जिस पर इल्जाम धरा गया, लेकिन जब तफ्तीश हो अगर इल्जाम साबित हो जाए तो फिर वो बनता है मुजरिम, और मुजरिम को होती है हथकड़ी, मुजरिम को होती है हथकड़ी। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा, फइन्नहु आसिमुन कल्बुहु, जिसने एक शहादत को
छुपाया, वो अपने ज़मीर का मुजरिम है। इसने एक शहादत को छुपाया है, एक झगड़ा एक पर है। अब मुसलमानों के सर पर कुरान रखकर पूछो तो वो एक शहादत तुम छुपाते हो यहाँ। झगड़ा एक पर है। और ये आखिरी आयत पढ़ रहा हूँ और ये अल्फाज है सूरह अल-कलम के, अपन नजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीना मा लकुम कैफ़ तहकुमून। ऐ मुसलमान, हमने तुम्हें मुसलमान बनाया था, फिर तो क्यों मुजरिम है अपने ज़मीर का? अपन नजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून। हमने तुम्हें मुस्लिम बनाया था, फिर तो क्यों मुजरिम है अपने ज़मीर का? और तू कैसे फैसले करता? तू मुजरिम है अपने ज़मीर का। अब दिल में अली अली करता। और जमील हैदर का जुमला सुनता, जब ये आयत नाज़िल हुई, सहाबे कराम ने रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये ज़मीर का मुजरिम कौन होता है? और अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने अपनी किताब तहज़ीब और तहज़ीब में लिखा कि सहाबे कराम ने रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये ज़मीर का मुजरिम कौन होता है? रसूल ने फरमाया मन अनकरा अन विलायत अली फ़इन्नहु मुजरिमुन। देखो, जो अली की विलायत का मुजरिम हो, समझना कि वो मुजरिम है। गुनहगारों की शिफात करने वाला शफीउल मुजरिमीन नहीं है कि अली की विलायत का मुनकर भी हो फिर शिफात रसूल रखे। गलत। समझ में आ रही मेरी बात? रसूल शफीउल मुजरिमीन है, शफीउल मुजरिमीन नहीं। मुजरिम उसको कहते हैं। सलवात पढ़े मौला। वो होता है मुजरिम। मेरे ऊपर यकीन न करना, जाओ जाकर अदालतों के चक्कर लगा। जो कानून का मुजरिम होता है उसको हथकड़ी लगी होती है। और ये हथकड़ी जब लगी होती है मुजरिम, फिर इंसान के ज़हन में आता या तो इसने किसी का कत्ल किया है या इसने किसी का भाग लूटा है। जिसको कोर्ट में हथकड़ी लगी हो, समझना कि ये पाकिस्तान के कानून का मुजरिम है। और जिसको मस्जिद में पर नहीं, हुसैन का कलूब पर कंट्रोल है। दुनिया कहती है कि रोना फितरत है। अगर शिया रोते हैं तो क्या हुआ? वाकई में मानता हूँ कि रोना फितरत है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस दुनिया में आए थे तो अपनी माँ से पूछे, अपनी दाई से पूछे, रोते हुए आए थे या हंसते हुए आए? फिर आपने इब्तिदा खुशी की क्यों नहीं की? आज कहते हैं कि साल की इब्तिदा खुशी से होनी चाहिए। मेरे दोस्तों याद रखना, रोना जिंदगी है, रोना हयात है। और इसी बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि इंसान रोता है अपने
200 बरस गुजर गए, आज भी जब हुसैन का नाम आता है तो जबानों से बेसाख्ता निकल जाता है, हुसैन तेरी प्यार, है हुसैन तेरी गुर्बत। पता चला कि कोई पावर ऐसी है जिसका फितरत पर भी कंट्रोल है कि आपको रोना पड़ेगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, खुदा की कसम, अल्लाह की अजमत की कसम खाकर कहता हूँ कि ये हुसैन के किरदार का कमाल है। यही वजह है कि जब हुसैन इस दुनिया में आए तो रसूल ने उम्मे ऐमन को कहा कि जाओ मेरे हुसैन को लेकर आओ। उम्मे ऐमन आई, हुसैन को सफेद कपड़े में लपेटा, रसूल के पास लेकर आया। जैसे रसूल के हाथों पर रखा, रसूल रोने लगे। उम्मे ऐमन ने पूछा, या रसूल अल्लाह रोते क्यों? बताओ बेटा अच्छा नहीं लगा? कहा उम्मे ऐमन अगर अच्छा न लगता तो मैं रोता क्यों? अच्छा लगा इसलिए तो रोता हूँ। एक जुमला सुनो जिसको मिशकात शरीफ ने भी लिखा है, इन अल्फाजों को मैं अपने अल्फाजों में अदा करना चाहता हूँ। कहा या रसूल बेटा अच्छा नहीं लगा? कहा उम्मे ऐमन अच्छा न लगता तो मैं रोता क्यों? कहा जाओ मेरी बेटी बतूल को लेकर आओ। मेरे दोस्तों, जनाब सैयदा देखा कि बाबा रो रहा है। कहा बाबा मेरा बेटा हुसैन अच्छा नहीं लगा? कहा बेटी अगर हुसैन अच्छा न लगता तो मैं रोता क्यों? अच्छा लगा तो रो रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जनाब सैयदा ने पूछा बाबा बताओ तो सही क्यों रो रहे हो? कहा बेटा बेटी फातिमा जब मैं सजदे में जाऊंगा हुसैन मेरी पूंछ पर सवार हो जाएगा, मैं तब तक सजदे से सर को नहीं उठाऊंगा जब तक हुसैन खुद नहीं उतरेगा। रो इसलिए रहा हूँ कि जब हुसैन सजदे में जाएगा कोई उठाने वाला ना होगा। दुश्मन आन के हुसैन के सर को उठाएंगे, दुश्मन आन के हुसैन के सर को उठाएंगे। कहा बाबा बताओ तो सही क्यों रो रहे हो? कहा जाओ मस्जिद से अली को लेकर आओ, हसन को लेकर आओ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब अली आए, हसन आए, देखा कि रसूल रो रहे हैं। कहा या रसूल बेटा अच्छा नहीं लगा? बताओ क्यों रो रहे हो? रसूल ने रोकर कहा अली पहले बतूल के बाजू पकड़ो कहीं बेहोश न हो जाए, पहले बतूल के बाजू थामो कहीं बेहोश न हो जाए। अरे नौजवानों, हमें तो दीन मुफ्त में मिल गया ना, वो तो बतूल के दिल से पूछो जिसका बड़ा घर उजड़ गया। अली बतूल के बाजू थामो कहीं बेहोश न हो जाए। इमाम हसन और अली ने माथे और जनाब अली ने बतूल के बाजू थामे। रसूल ने फरमाया बेटा बतूल, अली भाई ये आपका बेटा और मेरा नवासा 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाए। ये आपका बेटा और मेरा नवासा 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। जनाब सैयदा ने मुड़कर एक जुमला कहा, बाबा फिर रोते तो अपने हैं ना, फिर रोते तो अपने हैं ना, फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? बाबा क्या आप मौजूद होंगे जो मेरे बेटे को रोएंगे? कहा बेटी मैं भी मौजूद नहीं होगा। कहा मेरा शोहर अली मौजूद होगा? कहा अली भी मौजूद ना होगा। कहा भैया हसन उसका मौजूद होगा जो अपने भाई को रोएगा? कहा हसन भी मौजूद ना होगा। जनाब सैयदा ने रोकर कहा बाबा मैं मौजूद होंगी जो हुसैन को चकनियां पीस पीस कर मारूंगी, मैं मौजूद होंगी जो अपने बेटे हुसैन को रोऊंगी। कहा बेटी आप भी मौजूद न होंगे, बस ये जुमला कहना था। या जनाब सैयदा ने पूछा बाबा फिर रोते तो अपने हैं ना, फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? रसूल ने फरमाया बेटी बतूल अल्लाह ने मुझसे अहद किया है कि मैं एक कौम को पैदा करूंगा जिस कौम के बूढ़े हुसैन के बूढ़ों को रोएंगे, जिस कौम के जवान हुसैन के जवानों को रोएंगे, जिस कौम के बच्चे हुसैन के अस्कर और सकीना को रोएंगे, जिस कौम की औरतें हुसैन की मुकद्दरात और इस्मत और तारत बीवियों को रोएंगी। जनाब सैयदा ने कहा बाबा फिर आप उन अज़ादाराने हुसैन को क्या देंगे? रसूल ने अली से पूछा अली आप हुसैन के अज़ादारों को क्या देंगे? अली ने हसन से पूछा, कहा बेटा हसन आप अपने भैया हुसैन के अज़ादारों को क्या देंगे? अज़ादाराने हुसैन खुदा की कसम। रसूल ने अली से पूछा, अली ने हसन से पूछा। या जनाब सैयदा ने रोकर कहा बाबा आप कुछ दें या न दें?